Welcome to the class of Business Studies. Your Unit 7 is going on, and now we have come to the very last element of our step directing. As you all know that हम अपना process of management जो discuss कर रहे थे उसमें one of the fourth step है आपका directing का, after like planning, organizing, staffing and then is your directing. और डायरेक्टिंग के बच्चे अगर हमने सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो डिस्कस किए हों तो उसमें हमारे थे स्टाफिंग, motivation, then is your leadership, and last was communication. All these three we have discussed in detail, and the last concept, last this component of directing is your communication. तो अब हमारा जो भी ये नेक्स्ट 2 to 3 सेशंस होंगे वो इसी टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन कैसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक डायरेक्टिंग प्रोसेस का. Okay, so this session is completely based on this component communication, and today we will see what its concept, its meaning in detail, and how much important it is for this process communication. So let's start. Communication is the process of exchanging of facts, ideas, opinions or emotions. आप कम्युनिकेट जब करते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है, देर आर टू पीपल और यू कैन से टू पार्टीज, मोर देन 2 to 3 पीपल भी हो सकते हैं, ए बी सी डी एनी पर्सन. एंड जब आप इन सब के साथ अपना कोई भी मैसेज शेयर करते हो, कोई फैक्ट आप बता रहे हो, अपना कोई आइडिया शेयर कर रहे हो, ओपिनियन, इवन अपने इमोशंस, इवन लाइक एक्सप्रेशंस देना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. एक्सप्रेस करना किसी भी चीज़ को, लाइक इफ़ यू आर हैप्पी योर आईज विल स्टार्ट ग्लोइंग, यू स्टार्ट स्माइलिंग. इफ़ यू आर फीलिंग सैड यू विल नॉट स्माइल, right? And if there is something you are in pain, you start crying. That is expression, that are emotions. So these are the basic part, like you want to express yourself through words, through letters, through ideas, through your opinions, through your emotions to the other people. And when these other people, B C D in this example, if अंडरस्टैंड योर मैसेज, जो भी आप कन्वे करना चाह रहे हो, जो भी आप मैसेज देना चाह रहे हो, अगर वो उसको सेम वे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो तब हम क्या मानते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा हो गया. आप जो समझाना चाहते थे अगर अगली पार्टी को वही वैसे ही उसको समझ में आया है, देन दैट कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नाउ कंप्लीटेड. परफेक्ट. सो यही ये डेफिनेशन हमें बताती है. और जो पर्सन कम्युनिकेशन मतलब ये मैसेज आइडियाज दे रहा है, कन्वे कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीवर. एंड द पर्सन जिसको वो दिए जा रहे हैं, सॉरी, द पर्सन हु सेंड्स, हु कन्वेज दिस इज सेंडर, आई एम सो सॉरी. एंड द पर्सन जिनको ये दिए जा रहे हैं, जिनको वो मैसेज अंडरस्टैंड करने हैं, जिनको वो रिसीव करने हैं, दे आर रिसीवर्स. So these are the two parties, main parties in the communication process. So understand this definition once again. Communication is the process of exchanging of facts, ideas, opinions or emotions for what? To create dash understanding, to create mutual understanding. Mutual means that one what you want to convey is same, in same interpretation is understood by the other party. That is mutual. So mutual understanding is there between whom? Between receiver who receives the message and sender who sends the message. इट इज़ द सम ऑफ ऑल द थिंग्स जो कि एक पर्सन करता है, किस लिए? टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द डैश ऑफ अदर्स, इन द माइंड्स ऑफ अदर. दूसरे लोगों को जो चीज़ वो समझाना चाहता है, ये उन सब बातों का एक निचोड़ होता है कम्युनिकेशन. परफेक्ट स्टूडेंट्स. दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ऑल्सो अ सोशल प्रोसेस. इसको हम सोशल प्रोसेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन फीलिंग्स. सो it's important element as it's related to understanding and conveying human feeling, human emotions, human relationships. It builds human relationship. तो अगर अब आपसे कोई भी कंसेप्ट या डेफिनेशन पूछेगा, आई होप आप इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बता सकते हो. व्हाट इज कम्युनिकेशन? इट्स sending the message by one party to the other and the other party understands in the same way is communication. One party is the sender, other is the receiver. All right, now let's discuss importance of communication.
कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस क्या है, ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्टिंग में, दैट यू विल अंडरस्टूड थ्रू दीज पॉइंट्स. द फर्स्ट इज, it is the basis for coordination and smooth working of an organization. ओके, कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी, आपस में लोगों के ह्यूमन रिलेशंस भी उतने अच्छे होंगे, वो उतने ही अच्छे से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे. एंड प्लस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग है, डेली फ्लो ऑफ वर्क है, दैट विल बिकम वेरी स्मूथ एज कंपेयर टू अदर, स्मूदर वर्किंग हो जाएगी. फाइन. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. डिसीजन कैसे लेने हैं वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही लिए जाते हैं, और साउंड प्लानिंग भी कम्युनिकेशन से होगी. अगर टॉप लेवल को लोअर लेवल के लोगों की बातें ही नहीं पता होंगी, वो उनकी ग्रीवेंसीज को, उनके कोई भी उनको जो प्रॉब्लम उनको अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे, एंड सेम वे इफ लोअर लेवल इज नॉट trying or not able to understand what their top level or managers wants to send them, what they are doing for them, तो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है. और इससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग भी नहीं होगी, क्योंकि डिसीजन ले ही नहीं पाएगा टॉप लेवल, क्योंकि जो लोअर लेवल है दे विल नॉट कॉपरेट, दे विल नॉट अंडरस्टैंड, एंड दैट्स वाई इट्स अ बिग लूप इन साउंड प्लानिंग. It leads to what? Quick and dash performance, quick and efficient performance. जितनी बेहतर एक ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन होगी, कम्युनिकेशन लेवल जितना बेस्ट होगा, परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा तेजी से होगी, प्लस एफिशिएंट होगी. Why? Because there will be quick flow of messages from one party to another party, one department to another department. कोई भी गैप नहीं होगा, बैरियर नहीं होगा, और परफॉर्मेंस में कोई भी लूप होल नहीं होगा. दैट विल टेक प्लेस इन अ very fast manner. All right, so that's why communication is very necessary. What you want to discuss, उसको आप जितनी जल्दी आप डिस्कस करेंगे, उतनी जल्दी आपका परफॉर्मेंस लेवल भी इंक्रीज होगा. After then it promotes cooperation, as I said, and industrial peace. अगर एक पार्टी को कोई भी प्रॉब्लम है, ग्रीवेंसीज हैं दूसरी पार्टी के साथ, सपोज ए एंड बी, ए को कोई भी ग्रीवेंसीज हैं बी के साथ, दे आर नॉट हैप्पी विद द वर्किंग स्टाइल ऑफ बी, और इफ देयर इज समथिंग, देयर आर सम क्लैशेस बिटवीन देम, तो अगर ये आपस में डिस्कस ही नहीं करेंगे, दैट विल ग्रू एंड ग्रू. What main thing is necessary is communication. If they communicate with each other, if they try to understand each other, that is only through कम्युनिकेशन, तो कॉपरेशन भी बढ़ेगी, आपस में इंडस्ट्रियल पीस क्रिएट होगा. टॉप लेवल विल अंडरस्टैंड द ग्रीवेंसेस ऑफ लोअर लेवल वेरी वेरी क्लियरली एंड इन अ बेटर मैनर. देन कम्युनिकेशन हेल्प्स इन इफेक्टिव लीडरशिप. ओके, देयर विल बी इफेक्टिव लीडरशिप. जितने भी एलिमेंट्स डायरेक्टिंग के हैं वो एक दूसरे से लिंक करते हैं. लीडरशिप हेल्प करती है अच्छे कम्युनिकेशन होने में, और अच्छी कम्युनिकेशन हेल्प करती है लीडरशिप को होने में. कम्युनिकेशन फिर देखिए, इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन ऑल्सो. जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा, उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन लेवल होगा. आप कम्युनिकेट जब दूसरी पार्टी के साथ करेंगे, वो मोटिवेट फील करेंगे, उनको ये पता होगा येस देर आर समवन विद whom we can communicate, with whom we can share our thoughts, with our problems, our ideas. All right, the next is it promotes dash and development. What? It promotes training and development. ट्रेनिंग कैसे, कि कम्युनिकेशन में क्या होता है, इफ टॉप लेवल मैनेजमेंट इज इन नीड, दे वांट सम एफिशिएंसी और समथिंग न्यू टू बी ब्रॉट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ न्यू चेंज लेकर आना चाहते हैं, तो वो कब होगा, जब वो चीज़ वो अपने लोअर लेवल के साथ डिस्कस करेंगे. और लोअर लेवल को तभी वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन से होगी. इफ़ दे विल नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली, nobody will going to accept that change and they will hesitate to adapt in that environment. So lower level को उस hesitation को हटाने के लिए, उस barrier को हटाने के लिए communication is very very necessary. After then, what's the main thing is it builds healthy public relations. Communication, as I said, is a social process. Social process, there are humans are involved in this, human feelings are involved, human इमोशंस आर इन्वॉल्व, एंड दैट्स वाई जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से होगी, उतने ही अच्छे पब्लिक रिलेशंस मेंटेन होंगे, पब्लिक रिलेशंस हेल्दी होंगे.
Okay, that helps in building human bonding. Okay, so this are the major importance of communication, and that's why an organization needs an effective communication in their organization, right? So with this concept is over, and I hope you understood. In next the coming session may we will discuss formal communication. Till then, have a good day. Thank you.